तो it is because of certain reforms. कौन से reforms? तो economic reforms. So when we talk about economic reforms, क्या क्या चीजें आती हैं? तो याद है आपको LTG, याद है, स्ट्रक्चरल एंड स्टेबलाइजेशन मेजर्स, और उसके अंदर आता था LTG. तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं ऑफ LTG, इसका देशों पे असर पड़ा है, बिकॉज लिबरलाइजेशन, आप फ्री ट्रेड को अलाउ करते हैं, लिबरल पॉलिसीज बनाते हैं. Privatization, giving more role to the private sector, limiting the role of public sector, and then globalization. What is globalization? To integration of the world into a big economy, creating a borderless economy. उसको कहा जाता है globalization. तो इसी globalization का असर है कि जो countries हैं उनको अब बाहर के साथ ट्रेड करना पड़ता है. And trade means buying and selling of goods, that is importing and exporting of goods. सिर्फ goods नहीं, services, education, और आपका people, और आपका investment, तो सब चीजें एक दूसरे देश से लिंक है. अब जब हम लिंक हैं दूसरे देशों के साथ और हम उनके साथ ना होते हुए भी उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो हमें उनके बारे में जानना पड़ता है. तो कंट्रीज भी क्या करती हैं कि कंट्रीज ने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुट्ठी बन जाए तो बहुत कुछ कर सकता है. तो कंट्रीज ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, मोर पावरफुल कंट्रीज, क्या किया है, कई तरह के इकोनॉमिक यूनियंस को बनाया है. ये इकोनॉमिक यूनियन होती क्या है? जहां पे सारी कंट्रीज मिलके एक इस तरह का ग्रुप बनाती हैं कि उनकी ट्रेड पॉलिसीज, उनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, वो सब एक जैसी हो जाती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगती हैं. उसको कहा जाता है यूरोपियन यूनियन. So now I'm going to show you a slide. I'm going to share the screen and I'm going to show you the slide which will tell you कि ये कैसे होता है. Okay. That is capital and labor and a common external trade policy. And here what do? They unify the currency, so it becomes an economic and monetary union. So इस तरह की एक इकोनॉमिक यूनियन बना लेते हैं जिससे उनको आपस में ट्रेड करने में आराम मिलता है, and they do not have to face any sort of problem. I am going to show you some clips of economic unions which are mentioned in your books. This is SAARC, full form South Asian Association for Regional Cooperation, and you can see 8 flags here, so it means it comprises of 8 countries. Second is the European Union, and you can see here that it has 27 member states that are basically in Europe. So these are the examples of 2 unions, SAARC and European Union. Then you have ASEAN. Now what is the full form of ASEAN? So ASEAN, Association of East Asian Nations. The full form is Association of Southeast Asian Nations, and it has come up for regional integration, that is, it is intergovernmental organization. Then is G20, that is 20 nations. ये actually G19 था, और रशिया के आने के 20 nations. 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 20 na
is a 20 nations. Then next आता है BRICS. And in BRICS, you can see the key figure here, जो India represent करते हैं, Narendra Modi. You can see here. So it means when you call about BRICS, BRICS is an association of five. There's an association of five major economies. One called Russia, B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, and then you have South Africa. So all these are the member nations of BRICS. Okay. Now, why do countries form unions? Countries को यूनियन बनाने की जरूरत क्या है? तो आपने पढ़ा कि अकेले कोई भी उसको प्रेशराइज करता है, दबा सकता है, तो ग्रुप बनाते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग हो सके. So the first one is to adopt various means to strengthen their own state. Second is to understand development process of neighboring units. आस पास के देशों में, उनके पड़ोसी देशों में क्या डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करना. क्यों अंडरस्टैंड करना? क्योंकि जब आप उनके डेवलपमेंट प्रोसेस को देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, और तब आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और अपनी वीकनेस को मिनिमाइज कर सकते हैं. So to understand development process of neighboring units, और वो क्यों जरूरी है, so that you can identify your strength and your weakness as compared to your neighboring countries. और स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने से क्या फायदा है या वीकनेस आइडेंटिफाई करने से क्या फायदा है? क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करेंगे तभी सामने वाले से कॉम्पीट कर सकेंगे. सो द थर्ड इज टू कॉम्पीट विथ आस पड़ोस के साथ and with other developed nations. The third is to face competition not only among themselves but also with the developed countries. और आपको पता है किसी के साथ कंपटीशन करना हो तो उसकी स्ट्रेंथ और उसके वीकनेस का पता होना जरूरी है ताकि हम भी अपनी उसी हिसाब से तैयारी कर सकें. तो ये 3 थिंग्स हैं जिसके लिए the countries they form unions. Okay, so I'll give you 5 minutes to copy down the answer, and when you copy it just tell me. So can you see here? You can see it is India and जो उसके पड़ोसी देश हैं जिसका सबसे बड़ा एरिया है, on the one side you have Pakistan and the other is your China. तो क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे नेबर्स हैं और इसीलिए इस चैप्टर में वी हैव टू स्टडी अबाउट बोथ दीज कंट्रीज एज वेल. और इनको पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. इंडिया आपको पता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और क्यों लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है? क्योंकि यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, यहाँ पे लोगों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं. सो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज अ चाइना. चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री क्योंकि पहले यहाँ पे मोनार्की रूल था, दैट मीन्स किंग वाज रूलिंग. बाद में ये थोड़े टाइम के लिए रिपब्लिक बनी एंड बाद में इसको कम्युनिस्ट कंट्री बनाया गया. दैट मीन्स इट इज अ कंट्री वेयर देयर इज ओनली वन पार्टी,
उसके अलावा कोई पार्टी सिस्टम्स नहीं हो सकते हैं. So there is only one party, leaders बदलते हैं, but the basic policies, programs still remain the same. And then you have Pakistan, जिसमें हमेशा ट्रांजिशन होता है फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू मिलिट्री. तो दैट इज पाकिस्तान. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान.